इसमें देखिए सर। हाँ ये, जैसे देखिए ना, रिकॉर्डिंग के साथ में एक वो पेज जैसा आ रहा है बना हुआ। मैं तो कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, करिए, कोई बात नहीं, देखेंगे, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग वैसे चालू तो किया मैंने। हाँ चालू है सर, रिकॉर्डिंग तो चालू है। ठीक है सर। तो कल रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो तकलीफ हुई कुछ? नहीं सर, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो लोग क्लास में आ रहे हैं सिंसियर पीपल आर ऑलराइट। ऑलराइट। और जिन लोगों को तकलीफ हो रही है दे कैन आस्क क्वेश्चंस ना। जो चीज नहीं समझ में आएगी पूछना चाहिए। कल क्या कर रहे थे हम लोग? व्हाट वी वे डूइंग? ब्लड पे स्टार्ट किया था सर, ब्लड ची स्टैग्नेशन और ब्लड स्टेसिस। अच्छा, तो ब्लड के बारे में पहले तो ब्लड मैन्युफैक्चरिंग एक बार हम लोग किया था शायद। मैं ब्लड मैन्युफैक्चरिंग का बताया था कि नहीं? पहले बता दिया था। बिल्कुल। सी, ब्लड के साथ ही बॉडी फ्लूइड्स भी है। देयर इज अनदर थिंग, बॉडी फ्लूइड्स। ब्लड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड बॉडी फ्लूइड्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड आप समझ गए हैं, स्प्लीन और किडनी। लेकिन ध्यान रहे, जब हम स्प्लीन कहते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ स्प्लीन वी आल्सो talk of stomach. Spleen and stomach are a unique couple where the roles are a little different. Yin material is kept with the stomach, and the yang is kept with the spleen. It's the other way around in other couples, right? Then we talked of pure and impure fluids a little bit, and we tried to understand what is. Now remember, the blood is carrying both solids and liquids. Solids और liquids में कौन yin है कौन yang है? Which one is yin and which one is yang in solids and liquids? So there are two सोलिड portions in the blood. सोलिड Solids are yin, liquids are yang. So remember it, and accordingly we will have to also keep in mind when we are trying to evolve formulae. Question we will talk later. Functions we have already talked about. Now, so the diseases of blood. Most important is either a deficiency of blood or stasis of blood. Not confusing. Every book is trying to confuse us. It's not so easy to understand from any one book. Mhm. I think I shall have to write yet another book for the students to make things clear cut, simple language. इतना कंफ्यूजिंग कर रहा है।
Okay, so let us try to understand what all kinds of imbalances and problems can arise due to blood. So the diseases due to blood imbalances can be studied under four heads. Number one, deficiency of blood. Number two, stagnation or stasis of blood. Number three, loss of blood by bleeding. And number four, heat in blood. These four heads, this is okay. So we will examine each of them. The first one is deficiency of blood. So let us try to write it down. Otherwise, we may again kind of make mistakes, get confused. So what we will do, we will write it. Okay. So diseases of related to blood means first is blood. Second is blood. And third is the fourth is four possibilities. So when we talk of deficiency of blood, what all symptoms will come so that we will know that there is deficiency of blood. पहली बात तो यह है कि आज के युग में in today's time we have pathology labs where from people come with the report. So we can see the total count. We can see the solids. Each solid, the three solids are white blood cells, red blood cells, and platelets. So we can see absolute value, we can see percentage, that all we can see. That in fluids also, there are so many tests that people already come with so many reports. So these symptoms, of course, we should know as acupuncturists, but don't worry if you don't remember it, because patients will always be coming with reports, and you can always make out whether if there is a blood deficiency, the tongue will be pale, the nails that will be pale, the eyes will be pale. All this, if you are careful and look at the patient, so you will know that there is a deficiency of blood. Deficiency of blood is manufacturing में सबसे important कौन है? Who is most important for generation of blood? Spleen. So deficiency of blood is definitely because of what? Weak
The first and foremost thing, if there is deficiency, if you feel you have a patient who is anemic, तो सबसे बड़ी बात क्या है? Either his spleen is weak or he is not having balanced diet, because essence of earth, right, that includes food. So food should be sufficient, of right quality, and spleen, that is pancreas. Spleen means pancreas should be strong enough to digest, means they should be, spleen should be, pancreas should be able to generate enough of enzymes. But there's another thing. What else? You see, in our body, where do you find blood? If you have to treat blood, where will you find the blood to treat? There are two places. दो जगह है. कौन कौन सा? एक है लिवर, जहां ब्लड स्टोर्ड होती है. Nearly 25% of the total blood is always present in liver. And the other place where you can find most of the blood is blood vessels and heart organ. So that is pericardium. Why I said heart organ is pericardium? Because it is the pericardium meridian which wraps around the heart organ. If you have, so the next in line, looking first, you should try to explore how is his spleen, and also plus what? Kidney, of course, is supportive role always in the blood generation. And the effect, if there is deficiency of blood in the whole of the body, अगर deficiency होगी तो सबसे पहले storage जो है वो कम हो जाएगी. तो what will be affected? liver, Liver and heart. So we have to look for the symptoms in liver, heart, spleen, and kidney. Weakness, that is deficiency because the generation is less, that should be taken care of. Prime thing is that. So in that case, what all symptoms you will get? You will, if the blood is less, then what will happen? क्या होगा? If the blood is less, तो क्या क्या होगा? Most importantly, what you will find is amount of blood goes down. Therefore, heme in the hemoglobin also will go down. Total hemoglobin, right? And therefore, the oxygen supply to different tissues, that will also go down. In order to maintain the oxygen level, which is necessary with every cell of the body in tissues, muscles, fat, everywhere, blood vessels, skin, what will happen? The heart will try to reach more blood. So, smaller lots, but more blood. Heart is pumping, but the quantity of blood is less. So, what will happen? Tuck, tuck. So, it will increase. So, that is known as palpitation. When it will do so? When the body will feel that the oxygen level is going down below a critical level. एक बहुत आवश्यक लेवल है ऑक्सीजन की, जो कि होनी ही चाहिए, मिनिमम लेवल.
उसकी तरफ जब मिनिमम के लेवल में आने लग जाती है, उस समय हार्ट विल स्टार्ट पंपिंग टक 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 टक, सो दैट द ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन्ड ऑटोमेटिकली। समझ में आ रही है गुप्ता जी? हाँ आ सर। रही है सर, आ रहा है। तो अगर डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड होगी तो सबसे पहली बड़ी बड़ी बात क्या होगी? क्रिटिकल लेवल में डेफिशिएंसी हो गई, पर आदमी को ब्लड ज्यादा चाहिए। ऐसी स्थिति में एक तो सिम्टम जो सबसे बड़ा पैदा होगा, क्या होगा? व्हाट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम? दैट विल बी पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट। हार्ट की धड़कन बढ़ जाएगी। तो क्या ये कंटिन्यूअसली बढ़ी रहेगी? कंटिन्यूअसली अगर बढ़ी है तो समझो उसको तुरंत भर्ती कर दो, ब्लड चढ़वाओ। जल्दी 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 पंप करके ऑक्सीजन लेवल फिर से चला गया थोड़ा मिनिमम से ऊपर, तो थोड़ी देर के लिए ठीक होगा, फिर चला जाए। सो इफ इट इज हैपनिंग वेरी क्विकली, वेरी फ्रीक्वेंटली, दैट मीन्स बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। सो सबसे पहला क्या होगा? व्हाट विल हैपन? एपिसोड ऑफ palpitations। व्हाट एल्स? अगर ब्लड कम हो जाएगा तो रिमेंबर वन थिंग, अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को उठा करके ले जाना पड़ता है कहां? हेड में। तो हेड में ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, दैट इज अनदर प्रोसेसर। तो वहां की क्या प्रोसेस है, उसको कैसे देखें? वहां नर्व्स हैं, और वहां द बॉस ऑफ एंडोक्राइनल सिस्टम है, और वहां क्या है? स्पीच सेंटर है, वहां क्या है? मेमोरी सेंटर है। ऑल दे विल बी ऑल स्टार्विंग। इनमें आपको लगेगा वीकनेस। आदमी की जो स्ट्रेंथ है, बिकॉज ऑफ मसल्स, दैट इज नर्व्स, दे विल स्टार्ट showing weakness, and the mental power will also. How will you measure the mental power? Mental power is known as something in the Chinese they call it shen. They call it shen। शेन में एक सबसे बड़ी कॉमन चीज जो देखी जाती है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो स्प्लीन हो, चाहे वो हार्ट हो, इज मेमोरी। So the another thing that you will see of getting affected with anemia, with loss of with less of blood, is memory। क्या हो जाएगा मेमोरी को? व्हाट कैन बी राइट? पुअर मेमोरी। पुअर मेमोरी, यस, करेक्ट। और क्या हो सकता है? डू यू नो दैट फॉर स्लीप व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर द लिवर ची and the heart chi and the kidneys yin। Kidney yin means body fluid। Liver and heart, what does it mean? If liver and heart, नहीं, हम लोग जानते हैं ना एक्यूपंक्चर में, व्हाट डू वी डू इफ वी आर नॉट एबल टू स्लीप, इंसोम्निया, enough of blood, enough of blood should reach the head, right? लैक ऑफ स्लीप। Lack of sleep, that means insomnia। This will be another symptom. This may be, this also we have to explore। Then what?
if the brain has another function, it has a function to supply to all your sense organs and to the different parts of the brain. The most important thing is providing the communication of brain and the body. ये बड़ी बात है. Therefore, I came to a conclusion that brain is another processor, and brain is receiving something with the body, but it has control over the body. How? There is a portion known as cerebellum. All of you have heard. Oh. Cerebellum. What is the function of cerebellum? What is the function of cerebellum? एक होता है सेरिब्रम और एक होता है सेरिबेलम. सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? The function of the cerebellum is to, if there is something wrong with the cerebellum, you will find that the balance of the body is gone. And there is another thing. There are other portions, that is midbrain, that is known as midbrain. And in the midbrain, if the lack of blood is there, then the thinking, इसको बोलते हैं विवेक, विवेक and the intelligence, that will go down. So all the sense organs will be affected and balance of the body will be affected and some kind of hollowness will be felt. This is known as dizziness. क्या हो जाएगा? चक्कर आने लग जाएगा, थोड़ा गिरने लग जाएंगे. All this will happen. So what we can write? डिजीनेस समझ में आया? केतन भाई हैं कि चले गए? हाँ हूँ. डिजीनेस क्यों आती है, समझ में आ रहा है? हाँ सर. ब्लड कम हो गया, और कम हो गया तो हेड को भी कम मिलने लगा. हम्म. तो हेड में एक तो है ब्रेन स्टेम, which is very important. Brain stem is that which is connecting your brain with the spine, and then there is important thing is pons, and then there is important thing is cerebellum. ये सारी चीज इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? हाँ सर. तो इनके जो जो फंक्शन है वो इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? ये फंक्शंस इफेक्ट होंगे तो हमारे आंख कान सबसे पहले जवाब देने लगेंगे. आंख को खोलते हैं, कब कोई चीज देख रहे हैं तो ब्लड सप्लाई आंखों में बढ़ जाती है, बंद कर लेते हैं तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है. Eyes are very important for regulating the blood supply to your head. Why? Because eyes are opening of liver, which is the highest blood storage. सबसे बड़े ब्लड बॉडी से कनेक्शन किसका है? आशा, यू मस्ट बी नोइंग इट इन योगा. Liver opens in eyes, and eyes are governed by your head. है ना? नर्व्स है ना, वहाँ रेटिना है, रॉड्स है, कॉन्स है, देयर सो मेनी, राइट? और सबसे ज्यादा सप्लाई किसको चाहिए? आंख को ही चाहिए. देयर एंड सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ है? वेयर इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड? इन द लिवर ओनली, एंड द लिवर सप्लाइज टू द आईज. Isn't it? Whenever you are with open eye, the head is always, the eyes are always demanding blood. The blood supply नहीं होगी तो सबसे पहले आंख इफेक्ट होगी. तो हम लोग क्या करते हैं? टू प्रोवाइड ब्लड एंड ऑक्सीजन to every part of your mind,
If you want to go inside in yogic kriya, in meditation, you shut your eyes. Isn't it, Asha? Yes, sir. आंख बंद करके, अरे एक क्लैन है, दे ऑल्सो से दैट दे आर वेरी स्पिरिचुअल एंड दे आर वर्किंग इन दैट फील्ड। दे से आंख को खोल के आप विद ओपन आईज यू शुड, Meditate. so that is much advanced and that requires much stronger mind. Not everybody can do it. आंख खोल के and then become oblivious of everything, कुछ नहीं देखना, आंख अपना काम छोड़ दे, means the supply of blood which is going to head is restricted from the eyes and sent to the other parts of the brain. That is very difficult. Therefore, generally, when we ask, not we, I mean our gurus ask to meditate, right? They say generally, majority, and it is easier for the people who start, those who are in living in the world. It is very difficult for them. इतना अभ्यास नहीं कर सकते, शुरुआत है। Close your eyes, shut your eyes and go inward. मेडिटेशन में ज्यादा आप देखेंगे जितने भी गुरु हैं, they will ask, that is easier, that is better. Easily you obtain the same status. नहीं? So remember this dizziness जब आएगा, सबसे पहले इफेक्ट क्या हो जाएगा? Blood coming, so liver's blood supply and heart is pushing it against the gravity. These two should be very strong for enough sufficient amount of blood to the head. And if the blood is deficient, what will happen? All your sense organs, especially the eyes and the ear, plus your balance, cerebellum, plus your memory, all this will go. And if this, so in sleep, having enough of blood, liver is very important and heart is very important. किसी को नींद नहीं आती, क्या करना चाहिए? ब्लड पहुंचना चाहिए ना ब्रेन में। तो अगर ब्लड पहुंचाना है तो लीवर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड होना चाहिए, नंबर 1, और हार्ट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड होना चाहिए, नंबर 2। देन ओनली दिस इज पॉसिबल। ठीक? सो इंसोम्निया मीन्स again you have to go back to liver and heart, and the supportive organ is kidney, so that it keeps everything moistened, because all your brain is suspended in CSF, right? That is pure fluid. So once the blood goes, then the third ventricle and fourth ventricle, from there the CSF will come out. ये पता है कि नहीं सबको? Do you know all this? Little bit of physiology we must know, though we are acupuncturist. नहीं, लेकिन अभी अभी ऐसा इतना नहीं है। We are not thousands of years back. We are now, we know a lot of modern science and physiology and anatomy much better than what people knew probably about thousands of years ago in China. So we should be able to connect. मैं ऐसे ही तो नहीं बोल रहा हूँ। Is it superfluous or is it making some नहीं सर, understanding is increased? अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है सर। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि आंख खोलने में भी दिक्कत तो होगा। आंख, अगर सोना है तो पहले आंख बंद करो ना, so that the whole brain will get lot of blood. नहीं नहीं, मैं ब्लड डेफिशिएंसी का बोलता हूँ, उसका इफेक्ट आंख भी नहीं, मैंने आंख खोल नहीं पाएगा। होगा, यस, आंख खोल नहीं पाएगा, ये और भी बहुत से कारण हो सकता है। लेकिन ये बात आपको समझना चाहिए, आंख ही सबसे मेजर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है विच has a kind of a control, or which can create demand of blood in the head. हेड में जो सप्लाई है उसको हार्ट ही पहुंचाता है, ब्लड इज रीच्ड बाय हार्ट ओनली, बट where the maximum blood is not in the heart, maximum blood is in the liver, and liver is connected to eyes, and if you are opening it
that means you are demanding blood in the eye. If it is coming in the eye, then there should be sufficient blood in the liver, and sufficient blood should reach the head. सारे कनेक्शन मिल रहे हैं ना, लॉजिकल लग रहा है ना? आई गेटिंग इट, एवरीथिंग लॉजिकली फिटिंग. देन व्हाट? Suppose there is a deficiency of blood, what else will happen? Heart is the governing organ. It governs the distribution of blood. Right? Blood vessels. Heart means blood vessels. तो blood vessels में जो blood चल रहा है, do you know that there is a peristaltic motion in every blood vessel? Therefore, the blood moves. Dr. Asha, you must be knowing. जोशी जी, do you know? नहीं, नहीं मालूम. ठीक सर. पेरिस्टालिटिक मोशन समझते हैं क्या होता है? ब्रेन नहीं, का वही नहीं समझ. खाना हाँ, खाना भी चलता है, ब्लड भी वैसे ही चलता है पेरिस्टालिटिक मोशन से. इन एवरी ब्लड वेसल यू हैव टू हैव ए पेरिस्टालिटिक मोशन. तो उसके लिए क्या चाहिए? इनर्वेशन चाहिए, नर्व्स चाहिए. पेरिस्टालिटिक मोशन के लिए ब्लड वेसल की जो जो मसल्स हैं, द वॉल्स, they must be innervated and they must get the innervation, neural impulse. Neural impulse is सालों के लिए भी. उसके लिए खाने के लिए भी चाहिए. यस, यू आर राइट. जीआईटी में भी चाहिए. But this fact is less known to my students. You may be knowing, you are a PhD, all that, but rest of the people may not know. Do you know that blood vessels also require peristaltic motion for the blood movement? Then you also don't know. So this is lesser known fact, because people don't read physiology, anatomy. When I am in yoga, I am in acupuncture, why should we read physiology, anatomy? ऐसा नहीं करना चाहिए. थोड़ा सा physiology, anatomy पढ़ना चाहिए. तो ये पढ़ने से ये मालूम पड़ जाएगा. Any book will give you how the blood flows, moves, because it is innervated. Nerve supply is there in the walls of the blood vessel. What is this in terms of acupuncture? What is this? Nerves are what? Nerves are yang. Nerves are yang. So for blood vessel, heart is generating chi. Where is the yang of heart lying? In the small intestine. And the overall yang to the GIT also is supplied by spleen, of course. So for GIT, it is spleen. But for blood vessels, small intestine, that is the yang portion of heart chi. हार्ट का पार्टनर कौन है? हॉलो ऑर्गन कौन है? ऐसा ही. स्मॉल इंटेस्टाइन. तो हार्ट ने जो जनरेट किया उसका यांग पोर्शन किधर है? ऐसा ही कहता है. So small intestine is very important for giving neural impulse to all the blood vessels. And even this body, this small intestine or large intestine or stomach, everything is provided overall yang chi by spleen. So spleen और small intestine कितना ज्यादा connected है? Can you imagine? It is very much connected. Spleen is generating blood. Overall, small intestine is part of GIT. And small intestine is having the yang portion of the chi generated by heart, which is providing the innervation to the muscles of blood vessels. नहीं समझ में आती है? आ गया है. Now suppose the blood is less. So what all will happen? एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई to every tissue will go down, number one.
Number two, the nourishment is also reached with the body fluid in with the blood. नरिशमेंट कैसे पहुंचती है? केवल ऑक्सीजन पहुंचने से नहीं होगा ना, कार्बोहाइड्रेट भी पहुंचना होगा, सो दैट इट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस, then carbon dioxide is generated, all that, the whole chemical reaction series chain is taking place. Therefore every cell will get nourishment, isn't it? सो नरिशमेंट कम होती चली जाएगी सबको, ब्लड कम हो जाने से ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी और नरिशमेंट कम हो जाएगा. So, who will be affected first? Nice. Heart. Because after liver, who has the maximum amount of blood requirement? Heart requires. Right? और अगर ये कम हो जाएगा तो सारा जो ब्रेन की जितनी कहानी हमने बताई है, the memory, the balance, the eyes, everything will go down. With the heart, everything is related. Heart में ही मन का आवास है. द माइंड resides in heart, and it is the mind which controls all your sense organs. Your sense organs, and not even sense organs, even the action organs will work only with the help of man. Unless man, your mind goes there, these sense organs will not work. बड़ा रहस्य है, इतना डीप शायद आपको समझने की जरूरत नहीं. मेरे को पॉइंट बता दो Li4, मेरे को पॉइंट बता दो P6. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. सो व्हाट विल हैपन? Blood is less, that means the quantity of blood will go down in liver. First liver will be affected, then heart will be affected. If the blood has gone down to a certain level and the heart is not having enough of blood, so the tissues are going weak, it is getting less of nourishment, and suddenly a lot of blood comes into the heart, it starts as if you are dozing, and you will again get awake. All the muscles of the heart, they will get awake. So when the blood deficiency takes place, suddenly the heart starts with the demand in the sense organs and in the mind, thought. कहीं थोड़ी सी आवाज हुई, what happened? आवाज हुई तो ब्लड की डिमांड बढ़ी कान में, तो सडनली द ब्लड डिमांड, अब ब्लड है नहीं, द ब्लड इज नॉट देयर, सो ऐसा हो जाएगा एज इफ यू हैव woken up from the sleep. So you should know there is deficiency of nourishment to heart. हार्ट टिश्यूज मीन्स ब्लड वेसल की टिश्यू को नरिशमेंट कम मिल रही है. They are not strong enough to absorb that disturbance, sudden disturbances of sound, sight, smell, taste, touch. Most obviously, the sound and touch. इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चौंकना और अंग्रेजी में बोलते हैं startle. Just get startled. Sudden. कभी कभी जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हार्ट की नरिशमेंट, हार्ट के वॉल्स, हार्ट मतलब ब्लड वेसल्स की वॉल्स वीक हो गई हैं. देखो दो बातें होती, फंक्शन में दो बातें होती. एक नर्व स्ट्रांग होना चाहिए और मास ऑफ द मसल जिसमें नर्व जा रहा है इनर्वेट करने के लिए, वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर स्ट्रांग होनी चाहिए. उसके लिए स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए? नरिशमेंट चाहिए. दैट कम्स विद द बॉडी फ्लूइड व्हिच इज फ्लोइंग विद द ब्लड. ब्लड कम हो जाएगा तो नरिशमेंट कम हो जाएगी. सो नरिशमेंट मीन्स यिन और yang. व्हाट इज नरिशमेंट? यिन. yin. सो हार्ट की यिन डेफिशिएंसी बताते हैं उसको चाइनीज. व्हेन यू गेट स्टार्टल्ड समटाइम्स, once in a while, once in a while. समझ में आ रही है? कठिन है.
सर हाँ, यस केतन भाई बोलिए। मैंने कई पेशेंट को ऐसा देखा है, कोई आवाज वैसा कुछ नहीं दे, वैसे जो शौक लगता है ना, ऐसा जर्क आता है, कैसे कैसे ऐसे होता है? स्लीप कैसी है उसकी देखो, हार्ट चेक करो, CV14 चेक करो, CV13 चेक करो। सो CV13 से लेकर के CV15 तक सब हार्ट की कहानी बताता है। CV17 भी, CV15, 16, 17, ऑल दैट। So maybe it is the yin deficiency in the heart. The nourishment is not reaching. So we have to. So what happens is dizziness, and the patient will get startled. ये स्टार्टल का साइंस पता लगा, रीजनिंग। जी, अब समझ आया, पहले सुना था लेकिन बस याद करते थे कि स्टार्टल्ड। हाँ तो और क्या, फार्मूला चाहिए था आप लोगों को, तो सबको फार्मूला ही चाहिए था, तो लोगों ने फार्मूला ही दिया। जी जी। अभी तो लग रहा है ना पता। हाँ, अब समझ आ रहा है, रीजन समझ आ रहा है। हम्म। और ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो कलर ऑफ स्किन विल चेंज। सबसे पहले कहाँ चेंज हो गए, हेड में। हेड में कहाँ मालूम पड़ेगा सबसे जब पतला स्किन, थिनर मोस्ट स्किन इज ऑन द लिप्स। सो कलरलेस लिप्स, पेल हो जाएगा ना सब कुछ, टंग पेल हो जाएगा, ये कम पेल हो जाएगा, राइट। तो दो बातें आपको करनी पड़ेंगी। हार्ट मीन्स ब्लड वेसल्स। तो हार्ट अगर ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल में जो नर्व्स हैं वो वीक हो जाएंगी तो भी ब्लड नहीं पहुंचेगा। इफ द नर्व्स गेट वीक, सो यू हैव टू ट्रीट नर्व्स, यू हैव टू स्ट्रेंथन नर्व्स, यू हैव टू रीच ब्लड टू द नर्व्स। नहीं, सिंपैथेटिक नर्व्स के लिए कौन सी मेरिडियन है, उसमें बहुत ब्लड है। कौन सी मेरिडियन है सिंपैथेटिक नर्व्स के लिए? ऐसा ही भी। आर, ऐसा ही। SIUB, SIUB, Tyang. So you will have to treat Tyang. And what else? Shaoyin, Shaoyin and Tyang. And if, of course, liver is important, and the blood of liver uh, will go where? To the head. How it will go? लिवर से चल करके ची ब्रेन में कैसे पहुंचती है? पेरिकार्डियम के माध्यम से। सो यू विल हैव टू ट्रीट लिवर पेरिकार्डियम, यू विल हैव टू ट्रीट SIUB। समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है अब? हाँ ये हाँ वाला सर। ये वाला फिर से रिपीट करें सर, ये ऐसा है यूपी वाला टाइयांग क्या आपको ये मालूम है ना कि हमारे ट्रंक में जो प्रोसेसर है, द प्रोसेसर नंबर 1, सर? एक्सेप्टिंग आशा, में बी ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर आर दो प्रोसेसर। तो सबको मालूम है, तीसरे को अभी छोड़ दो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द लेडीज ओनली। लेकिन जी। दो प्रोसेसर कौन कौन से हैं? Let us talk face to face. Put on your cameras. Those who want to understand, they should have their cameras on. Processor, हार्ट और लंग्स का हाँ, प्रोसेस नंबर 1 हुआ है।
हार्ट और लंग्स, और नीचे वाले में स्प्लीन, किडनी और आप हाँ हाँ ठीक है ना? तो अगर बॉडी फ्लूइड्स फॉलो ची, body fluids follow chi, and body fluids means with the blood, because body fluids are with the blood. ब्लड के साथ है ना बॉडी फ्लूइड, जी सर। ब्लड में ही है ना 45% एंड 55% सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। हम्म, तो सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ है? लिवर में है। सो लिवर ची, नाउ लिवर ची हाउ डज इट गो टू हेड? थ्रू हार्ट, पेरिकार्डियम। नॉट हार्ट, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। हाँ, सो यू हैव टू सेलेक्ट विच मेरिडियंस? लीवर एंड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, किडनी, हार्ट। लीवर ना, हार्ट, पेरिकार्डियम, किडनी, लीवर। पेरिकार्डियम, kidney, heart, and what? Small intestine. Small intestine for nerves, for peristaltic motion. और सब में क्या करना है? Yang, tone, yin sedate. But before that, you must ensure that there is enough of generation of blood. So never forget who generates the blood. The spleen. खाना अच्छा देना पड़ेगा। खाना अच्छा नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, राइट? एंड देन यू हैव टू डू दिस। आसान है। अगर ये पूरी बातें जो मैंने आज बताई हैं, इफ दिस गेट्स इनटू योर माइंड, यू विल बी एबल टू डेवलप योर ओन फॉर्मूला। क्या करना है? हीट, हीट टोन कोल्ड सेडेट, हीट टोन कोल्ड सेडेट, फिनिश। दो लीवर नॉर्मल। पे लीवर, पेरिकार्डियम, हार्ट और किडनी, 4 बोले ना? हम नहीं बोले, आप बताइए अब, आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस। नहीं, आपने इंग्लिश बोली ना हम नहीं, इसलिए। हम नहीं बताते हैं, हम नहीं बताते हैं। आप ही बताइए, आप अपना दिमाग लगाइए, कौन कौन से हमको क्या क्या चाहिए। अगर ब्लड की कमी हो गई तो क्या क्या होगा? हु विल बी फर्स्ट अफेक्टेड? लिवर एंड हार्ट। एंड वेयर द सिम्टम्स विल बी प्रोड्यूस्ड? द मेंटल फैकल्टी फर्स्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन ब्लड को पहुंचाना हेड में है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। पहले तो लिटा दो पेशेंट को, क्या बोलो? बेड रेस्ट में जाओ बाबा, हर समय लेटे रहो तुम, सो दैट यू आर इजीली द ब्लड रीचेज योर हेड। हॉरिजेंटल पोजीशन में ब्लड आराम से पहुंचेगा कि नहीं हेड को? हाँ सर। गुप्ता जी ज्यादा लॉजिकल सोच सोच लेते हैं जल्दी। आप लोगों को टाइम लग जाता है, फट से सोच लेते। भाई हॉरिजेंटल रहेंगे तो ब्लड को थोड़ा मसल पावर कम तो, और वो मसल पावर कैसे मिलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, अभी बताया मैंने ना, यांग है ना, नर्व है। जी। And Taiyang is carrying a huge amount of blood, and Jiuyin is also having huge amount of blood. आपको देखना चाहिए, ये सब बात समझना चाहिए। हम्म। तो आपको अभी मालूम पड़ गया कि हार्ट में अगर ब्लड की डेफिशिएंसी होगी तो ये सब होगा। अच्छा, लिवर में ब्लड की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। दो, पहले दो ऑर्गन तो लिवर एंड हार्ट ही है ना। ब्लड की टोटल डेफिशिएंसी होगी तो या तो हार्ट अफेक्ट होगा या लिवर अफेक्ट होगा या दोनों अफेक्ट होगा। तो हार्ट का हुआ तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देयर इज अनदर प्रोसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिवर ब्लड डेफिशिएंसी। ये तो हार्ट की हो गई। अच्छा, यहां हमने नहीं लिखा, दिस इज
लिवर में ब्लड डेफिशिएंसी होगी तो क्या क्या होगा? लिवर किन चीजों के लिए जिम्मेदार है? आई एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट है। आंख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या होगा? अगर लिवर में ब्लड की डेफिशिएंसी होगी तो आंख में ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, वहां के नर्व्स वीक हो जाएगी, ब्लड दिखेगा। दूसरा आपने बहुत अच्छा बोला गुप्ता जी, महिलाओं में, इन लेडीज, इन फीमेल्स, व्हाट विल हैपन? मेंस्ट्रुअल स्कैंटी पीरियड्स हो जाएगा। और क्या होगा? What else will happen? Liver is responsible for ligaments, muscles, motor nerves. So, what does it mean? It means that the nerves which are going to your limbs, उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, बिकॉज nerves will become weak. लिगामेंट्स की सप्लाई नर्व के द्वारा होती है एंड लिगामेंट्स आर कनेक्टेड टू लिवर। तो नर्व्स आर यांग, सो यांग ऑफ लिवर कौन है? लीवर की यांग ची कहां है? जीबी। जीबी। एक्सेलेंट केतन भाई, वेल सेड। तो हमें ट्रीटमेंट किसकी करनी पड़ेगी? गॉल ब्लैडर की करनी पड़ेगी, इजंट इट? तो गॉल ब्लैडर के साथ और कौन आता है? शाओयांग। दैट मीन्स, ट्रिपल वार्मर। हाँ, गॉल ब्लैडर की ची कहां से निकलती है? एक तरफ से ट्रिपल वार्मर से जाती है, दूसरी तरफ से गॉल ब्लैडर से निकलती है। सो इनलेट, अगर इनलेट नहीं ठीक होगा तो गॉल ब्लैडर की ताकत कैसे बढ़ेगी? सो यू हैव टू टेक बोथ मेरिडियंस। अब आप चाहे फार्मूला बना लो और चाहे 5 एलिमेंट थ्योरी से आप काम कर लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे सर। हाँ, हाँ वहां सर। हार्ट मतलब ब्लड वेसल्स था, यहाँ लिवर मतलब लिगामेंट्स एंड मसल्स है जो काम करने वाले हैं, लम्ब्स को चलाने वाले, वॉइस को चलाने वाले, हाथ पैर ये सब को चलाने वाले लम्ब जो मसल्स हैं, उनको इनर्वेशन गॉल ब्लैडर। मसल्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कौन सा है? गॉल जीबी ब्लैडर। 34। हाँ, पता तो है, इशारा सर तो, वो इशारा मिल रहा है, लेकिन हमारी समझ नहीं है उतनी कि हम पूरे मेरिडियन को ले लें। उसमें 5 एलिमेंट के पॉइंट भी नहीं डाले चाइनीज ने, लॉन्ग मेरिडियन में इस तरह से बात भी नहीं की उन्होंने। उन्होंने तो 6 लेयर बना दिया बॉडी का और उसमें उसकी बात करके रह गए। तो द लॉन्ग मेरिडियंस दे वर नॉट studied properly and neither it were utilized by the Chinese TCM। समझ में आ रही है? मैं चाहता हूं कि these small class of students, I am also a student, no doubt, I am a part of it, we must analyze and understand and make our own formulae। क्योंकि अब हमारे पास 5 एलिमेंट के पॉइंट्स हैं सब जगह, जो कि चाइनीज ने कभी नहीं दिए थे। हमारे पास ची की पूरी पूरी मेरिडियन है, और जनरेशन में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों हम लोग ठीक कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट विद प्रॉपर फूड एंड प्रॉपर एयर। इसलिए ची गोंग इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ
कीपिंग एवरी सर्कुलेशन प्रॉपरली। नहीं, हमने बताया था ना तीन पाथ कौन कौन से थे? विंड पाथ ऑफ सर्कुलेशन, विंड वाटर फायर। वाटर पाथ एंड फायर पाथ। फायर। दैट इज चीगोंग। तो वो हम यहां से भी कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर से भी कर सकते हैं, जो कि चाइनीज ने कहा कि नहीं नहीं, दिस इज ओनली कॉम्प्लीमेंट्री। आज भी आप अच्छे अच्छे स्टॉलवर्ड से पूछो तो एक्यूपंक्चर को वो कॉम्प्लीमेंट्री बोलते, बिकॉज दे डोंट नो द, दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लॉइट द टोटल पावर ऑफ दिस थेरेपी बिकॉज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। केवल कॉपी पेस्ट सब, ट्रांसलेशन एक बार मिस्टेक हो गया। We have to try to understand. We have to integrate the modern science and with the physics and with the acupuncture, everything, and our wisdom, Indian wisdom of the philosophy of India and the philosophy of acupuncture, both have to be integrated. और क्या हो सकता है? This also can cause insomnia. ये तो पहले ही बता चुके हैं हम. I have already spoken about it, isn't it? So I shall not. आंख को बंद करना, तो आंख को बंद कर लेने से अगर थोड़ी ब्लड की कमी भी है, इवन इफ यू हैव अ लिटिल डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन द लिवर, क्लोज योर आईज एंड शट योर ईयर्स, इसमें प्लग डाल दो और आंखों को बंद कर लो, बोलना बंद कर दो, लाइट कम डिम कर दो, कमरे की लाइट डिम कर देते हैं कि नहीं सोने के टाइम हम? ऑल दिस विल हेल्प यू टू स्लीप। तो इंसोम्निया इससे भी हो सकती है। और क्या हो सकता है? अगर ब्लड की डेफिशिएंसी नहीं भी है और ब्लड की कहीं स्टैग्नेट कर जाए लिवर की, कर सकती है स्टैग्नेट, क्यों नहीं कर सकती? अगर ब्लड कम है तो स्टैग्नेट भी कर सकती है। ची स्टैग्नेशन हो गया, लिवर की फंक्शन कम हो गई। लिवर में ब्लड कम है, 80% ऑफ द ब्लड इज वीनस ब्लड, तो जो ताजा ब्लड आ रहा है वो 20% है, अगर वही कम हो जाए तो क्या होगा? जो 20% फ्रेश ब्लड आ रहा है, विच इज गिविंग लाइफ टू द मसल्स ऑफ लिवर, इफ that becomes less, then what will happen? लीवर फंक्शन गड़बड़ कर देगा। स्टैग्नेशन होने लग जाएगा। And that will give you what? This will give you spasms. है ना, हम लोग क्या कहते हैं? बांटे। हिंदी में क्या कहते हैं? बांटे। क्रैम्प्स, स्पाज्म। क्रैम्प। सो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी में ये भी हो सकता है। क्रैम्प्स कह सकते हैं इसको, क्रैम्प ना, क्या कहते हैं? क्रैम्प। फ्रेंड्स। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नरिशमेंट टू द लिवर मसल्स। लिवर नरिशमेंट कहां से मिलेगी? हार्ट से मिलेगी। लिवर ब्लड डेफिशिएंसी कैन बी ट्रीटेड इन टू वेज, because there are two source of blood in the liver. One is venous blood, the other is arterial blood. गुप्ता जी, am I जी right? सर, बिल्कुल सर। तो अगर बांटे वगैरह आ रही है तो क्या हो रहा है? आर्टीरियल ब्लड, आर्टीरियल ब्लड कम है। कमी हो रही है, और बाकी काम नहीं हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, स्कैंटी पीरियड से सब हो रहा है, तो क्या है? वीनस ब्लड। वीनस ब्लड की कमी हो रही है। वीनस ब्लड कहां से सप्लाई हो रही है लिवर को? पोर्टल वेन से।
हाँ, पोर्टल वेन से है, लेकिन वो कनेक्शन किससे है भाई? पेरिफेरल नर्व। है जी। स्प्लिनिक वेन। हाँ, यस। वीनस ब्लड के लिए कौन देगा? हु इज सप्लायर? स्प्लीन इज द सप्लायर है। और आर्टीरियल ब्लड के लिए? हार्ट। हार्ट मीन्स हार्ट ऑर्गन, हाँ। हार्ट ऑर्गन, हार्ट ऑर्गन। हाँ, हार्ट ऑर्गन। और आर्टरीज के लिए जिम्मेदार कौन होगा? हार्ट ऑर्गन मीन्स आर्टरीज, आर्टरीज मीन्स सर्कुलेशन मेरिडियन, दैट इज सर्कुलेशन मेरिडियन कौन सी है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। सही पकड़ में आ रही है गुप्ता जी। अब तक फॉर्मूला याद करते थे, अब फॉर्मूला अपने से बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं सर, कुछ समझ आ रहा है अच्छा सा। हमको तो भाई जब पता लगता है तो हमें तो बड़ी खुशी होती है कि यार ये पता लग गया। और हमें मजा तब आता है कि जब अपना फॉर्मूला डेवलप किया और उससे फायदा हो जाए। फॉर्मूले से तो फायदा होगा ही, वो तो मालूम है। मैंने किया है डेवलप करके, और किया इससे और तुरंत फायदा हुआ। अच्छा, क्या किया था? हाँ सर। लेट अस हियर। लॉन्ग मेरिडियन पे काम किया। अब सुनना। पेन हो रहा था। हाँ, एल एकांत बोलिए क्या किया था? स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन में पेन था पीछे की बैक साइड में। हम्म। तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन था, यूबी को और दोनों को किया ट्रीट। तो हम्म। ठीक हो गया, बहुत जल्दी ठीक हुआ। इसी तरह से जब कभी भी प्रॉब्लम होती तो मैं फॉर्मूले बनाने लग गया इससे, आपके मेथड। वाह, बहुत अच्छे यार, कम से कम यू आर नाउ ऑन द पाथ। अभी आप चालू हो गए, लेकिन अभी अभी गंभीर समस्याओं में नहीं गए। सो इट विल कम, धीरे धीरे सब आएगा। थिंकिंग तो थोड़ी सी फिजियोलॉजी एनाटॉमी हमको पढ़नी चाहिए। सम अमाउंट ऑफ फिजियोलॉजी एनाटॉमी इज आल्सो नेसेसरी। व्हाट एग्जैक्टली? एवरीथिंग इज नॉट नोन ऑफ कोर्स टू द मॉडर्न साइंस, बट वॉट एवर लिटिल इज नोन इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑन द नेट। सो वी शुड कीप इन टच विद दैट। मैं पढ़ता हूँ, मैं वैसे भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मेरे को जानकारी भी है। और अच्छा, फिजियोलॉजी में पढ़ता हूँ सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल वेल डन। सो अभी आपने हार्ट का देख लिया, लिवर का देख लिया। ब्लड डेफिशिएंसी होती तो क्या क्या होता है ये देख रहे हैं हम लोग। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स। लिवर की जो, उसको फाइव एलिमेंट थ्योरी में फ्लावर कहते हैं, नेल्स को। तो नेल्स आर द फ्लावर ऑफ, फ्लावर ही कहते हैं ना, कुछ इस तरह का है फाइव एलिमेंट थ्योरी में। चार्ट में देखो तो क्या कहते हैं? फ्लावर ही कहते हैं। फ्लावर। फ्लावर से। तो नेल्स का क्या होगा? लिवर में ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी, हार्ट में ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो नेल्स फेल हो जाएंगे। हाँ, नेल्स में उसकी जो मॉइस्टनिंग इफेक्ट है, जो ब्लड फ्लूइड्स, ब्लड के साथ फ्लूइड्स जो है वो भी कम पहुंचेगी। ये पेरिफेरल हार्ट कहते हैं उसे। तो लिवर में अगर ब्लड डेफिशिएंसी होगी तो नेल्स, अर्थात लिवर में प्रॉब्लम होगी तो नेल्स की प्रॉब्लम होगी। हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो लिप्स का कलर बदलेगा। नेल्स का कलर बदला तो लिवर में ब्लड की ज्यादा लिवर। deficiency है। ये बात हम देख सकते हैं। सो और डिजीनेस वगैरह ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। सो अंडरस्टूड इट। सो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड में सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले कौन कौन से ऑर्गन है? हार्ट एंड। हार्ट हार्ट और लीवर। और सबसे ज्यादा कठिनाई कहाँ आएगी? पेरिफेरी में ब्रेन आएगी। में।
ब्रेन। में आएगी। हमारी याददाश्त है, हमारा सोचना है, आवर थिंकिंग प्रोसेस, दिस दैट, एंड आल्सो द मसल्स। सो इफ द मसल्स आर इन्वॉल्वड, देन लिवर। लीवर इज। इंसोम्निया इज कॉमन बोथ, हाँ एंड आईज are very important. Ears are very important. सर Sudden requirement of the blood in the head because of sound or because of touch or because of anything, sudden disturbance. That, startling. startling. That is because of heart. ठीक है, अपना रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? क्योंकि आई थिंक दिस लेक्चर इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट टू फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग। हो रहा है सर रिकॉर्डिंग। हो रहा है, हाँ, बिकॉज कल क्या हुआ था रिकॉर्डिंग नहीं हुई लेकिन कल की क्लास कैसी थी? हाउ डिड यू लाइक? आप लोग तो थे ना, जो सर। भी थे, केतन भी बहुत हाँ आया। अच्छी थी सर, क्लास बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ अरे आप बांध के रखते हैं क्लास में, कहीं इधर उधर सोचने का मौका भी हाँ। नहीं मिलता। अरे भाई 20 लोग हैं अपनी क्लास में हमको छोड़ के, और आप आए कितने? क्या क्या बोल रहे हैं सर? 20? सर अभी ये जो ब्लड डेफिशिएंसी और लीवर का बताया ना, उसमें मोटर नर्व डिजीज और पार्किंसन डिजीज से ही कवर मिल जाते हैं। इस मोटर नर्व डिजीज, पार्किंसन में क्या हो रहा है? एक पार्किंसन जो मसल्स। ऐसे होता है, और एक मसल्स। पार्किंसन वो चलने में दिक्कत होती है, वो ब्लड डेफिशिएंसी वाला। इस हम्म, क्या करेंगे अब समझ में आ रहा है क्या करेंगे? ये लीवर, पेरिकार्डियम, हार्ट और किडनी, उसमें पार्किंसन में आँख छोटी ऐसे ऐसे पतली हो जाती है, ऐसे गुर करके देखता है, हम्म। आँख बंद भी नहीं करता है। हाँ, पूरा बंद नहीं होता, उसको ऐसे ऐसे करके देखने लगेगा। हाँ, टिगर टिगर करके देखता है, आँख बंद नहीं करता। हाँ, क्योंकि ब्रेन में उसको ज्यादा चाहिए ना, और हम्म, आंख खुला रखेगा तो आंख में ही आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन विल नॉट गेट ब्लड। सर वो आँख बंद करके समझाया था, वो क्या था वो मुझे मालूम नहीं पड़ा। आँख बंद करके और खुला करके। आंख बंद करेंगे तो रेस्ट ऑफ द ब्रेन विल गेट मोर ऑफ ब्लड। तो अगर लिवर में ब्लड डेफिशिएंसी है ना, या हार्ट वीक हो रही है, तो पहले आंख बंद करके हॉरिजॉन्टल लेटना चाहिए, उससे काफी फायदा मिलेगा। समझ गया। ये वो अपने में भ्रामरी प्राणायाम आता है। नहीं, भ्रामरी इज अ डिफरेंट थिंग। उसमें क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आर एक्टिवेटेड। हम्म, अपने लोगों को नर्वस सिस्टम पे भी एक क्लास करनी चाहिए केतन भाई, आई थिंक हाँ सर। अच्छी क्लास होगी वो क्योंकि बहुत सी चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं उसमें ना, वी कैन स्टडी। हमारी भी पढ़ाई होती है, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम लाइक जस्ट लाइक यू। और इतना कंफ्यूजन है बुक्स में, जो लिख दिया है बस उसको याद कर लो, फॉर्मूला करते चलो। अरे यार, कब तक करते चले बुढ़े हो गए। हम्म। इस दूसरा बुक है को कोई 10 बार पढ़ा होगा, that मेरे समझ नहीं आ रहा था सर। है। इस बुक को मैंने, ये ट्रेटाइज 7 को अब तक कोई 10 बार पढ़ा होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था मेरे को, आज समझ अब आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तो अब आया, आज समझ वही आया फॉलो इसका कर रहा हूँ। रीजन। आई एम सर फॉलोइंग Titai 7 ओनली, सर आरसी सर गुप्ता, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन a different way because I find it very confusing. बिल्कुल सर। शिवका जी ने खाली कॉपी पेस्ट कर दिया यार, बोलना नहीं चाहिए, गुरु हैं हमारे, गुरु रहे हैं। हम्म, है नहीं imagine? कोई नहीं बताता भाई, वाई ब्लेम हिम ओनली? किसी की भी किताब ले लो, अच्छे अच्छे राइटर्स की किताब ले लो, इतना कहाँ इंटीग्रेट कहाँ कर रहे हैं वो। मॉडर्न साइंस को एक्यूपंक्चर के साथ इंटीग्रेशन स्टार्ट किया डॉक्टर वॉल ने, उसको फिर छोड़ दिया लोगों ने, दे हैव इग्नोर्ड इट। More doctors should come into acupuncture and more engineers should come into the picture. Engineers means physics, logic.
एनर्जी, एनीवे, सो नेक्स्ट इज stagnation, stasis of blood. Stasis of blood is next. आज ही करें, थकावट महसूस होने लग जा रही है। मेरे को भी ब्लड की कमी है। क्या टाइम हुआ देखने का? व्हाट इज द टाइम? जो मोरलेस, थेरेपिस्ट है उनसे। मोरलेस 10 मिनट 12 मिनट आप लोग लेट आते हैं, तो मैं तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन आई कैन ओनली आई स्टार्ट व्हेन 4-5 लोग हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। क्या करें हम भी। चलो फिर स्टेसिस ऑफ ब्लड कल करते हैं, आराम से ही करते हैं, एक दिन और जाएगा और क्या होगा। ठीक है, कल सैटरडे है सर। चल ओहो कल छुट्टी है, कल आनंद का दिन है, वी शुड एंजॉय रेस्ट टुमारो एंड डे आफ्टर, सो देन वी विल मीट ऑन मंडे देन, दैट्स ओके। जी सर, ओके सर। तो याद रखिएगा जरा सा, ये पेज में ये भी डाल दीजिए। गुप्ता जी आप पेज नंबर थोड़ा नोट करके रखना। हाँ बताएं सर। हाँ, सो जस्ट रिमाइंड मी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम जी सर, पेज नंबर बताएं। दिस इज 114। पुरानी किताब है हमारे पास, आपके पास नहीं होगी, इंग्लिश में है, हिंदी में है? इंग्लिश में है सर। इंग्लिश में है तो उसका दूसरा होगा, देखो 114 के आसपास ये होगा, देखो कहीं ना कहीं ब्लड वाला। हाँ 114 पर मेरे पास और टाइप्स ऑफ हेडेक डिजीनेस ये हैं सर, हाँ कुछ हाँ, डायग्नोसिस है। तो उसके पहले होगा या उसके बाद होगा, देखो ब्लड खोलो, ब्लड, ब्लड का चैप्टर। अच्छा छोड़ो, तुम हमको बता देना ये पेज मेरी किताब में खुल ठीक जाए। है सर, ठीक है सर। सो आई थिंक वी आर क्वाइट मेकिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग आवर स्टडी, जॉइंट स्टडी अच्छी हो रही है, एंड आई एम बहुत ऑब्लाइज्ड अच्छा टू ऑल ऑफ यू दैट यू सर। आर लिसनिंग टू माय क्रैप। हमारे दिमाग का जो कचरा है मैं निकाल रहा हूँ नहीं आपका कचरा नहीं है, तो बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं सर। हाँ, ये कचरे से ही बनता है ना सब कुछ। जी ओके देन, गुड ओके नाइट, सर। एंड Right. आज तो रिकॉर्डिंग हुई है, टुडे वी हैव रिकॉर्डेड। पवन, हो, यू नेवर ओपनड योर कैमरा।